Good afternoon, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Allergy team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by round rash on the skin that itch a lot. It may be due to the chemical present in certain food items, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is even unknown. As per a study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences are higher in older age groups. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore, and doing self-medication can actually worsen these symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early relief. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its management. So, ladies and gentlemen, girls and boys, today we have with us renowned dermatologist Dr. Pallavi Rathi, live from My Skin, My Health Clinic, who will educate us more about urticaria and its management. Dr. Pallavi is a dermatologist, cosmetologist, and trichologist based in Andheri, Mumbai, and has an experience of 15 plus years in this particular field. Dr. Pallavi Rathi practices at My Skin, My Health in Andheri East, Mumbai. She completed her MBBS from PDM Medical College in 2005, MD Dermatology from Nair Hospital Medical College, Mumbai in 2008, and DDB from BYL Nair Hospital, Mumbai in 2007. Dr. Pallavi is a member of Indian Association of Dermatologists, Venereologists, and Leprologists, and Association of Cosmetic Surgeons of India, ACSI. A very warm welcome to you, Dr. Pallavi Rathi. It's a pleasure to have you with us for this session. Your mic is on mute. Yes, please. Yeah, thank you for having me on this session. I think today we will discuss about allergies and welcome all the viewers from Mumbai. Thank you so very much, Dr. Rathi, for taking out time for this session. As today we are going to talk about urticaria and skin-related, allergies, etc. So first of all, we would like to understand what urticaria is. Now, basically, urticaria is a skin condition which is characterized by elevated lesions. So these lesions come in circular, in some cases you see straight lines, in some cases you see irregular formation of elevated lesions on the skin. They are characterized specifically with having a lot of itching, burning sensation, and can be triggered by some food items, certain medications, or some infections in the body. They are associated with immense itching, and hence it causes a lot of discomfort to the patient, and most of the times it settles down within half an hour to 2 hours. But in certain cases, it keeps on coming and bothering the patient, where we need medicated treatments. Right. All these studies and the book says that urticaria is quite common. And, almost everybody gets it at least once in their lifetime, even before they realize what it is, maybe that will disappear, but at least they experience it. Now, my question is, doctor, as you said, it's a rash, it itches immensely. And the thing is that how can we actually look at it and understand, okay, it's urticaria and I need to go and consult a dermatologist. How does it look like? See, basically, when you see an urticaria lesion, it looks like some insect bite kind of thing, or a mosquito bite allergies, elevated lesions, but they come in a full flow. It is not like a single lesion, but they come as a group of lesions, a cluster of lesions, where you feel either a burning sensation, a stinging sensation, or an intense itching sensation. So the moment you realize that this is something which is there, the first thing which you should do is try applying ice and see if it is getting relieved.
If it gets relieved, it could be a transient urticarial episode, which might go on its own. But if it sustains more than 2 hours, it is better that you consult your dermatologist because we need to find out the reason for that urticaria. So it's important to find out the cause or the reason why the urticaria happens. Yes. Now, as you just mentioned, that there are a number of causes that can be due to allergy or due to weather change, etc. What all are the causes that can lead to urticaria? We normally divide these causes into 3 I's. That is ingestion, that is food items, whatever you are eating. It could be either some medicines or it could be some food items also. The most commonly what we see is seafood, which causes a lot of allergies, nuts, which causes a lot of allergy. Then there could be Chinese food items, particularly some sauce or something which triggers allergy, chana dal, which can trigger allergy. So these are certain things which are commonly known that they can cause a lot of allergic episodes or urticarial episodes. Second comes infection. If there is some infection in the body, which could be in the form of urinary tract infection or respiratory tract infection or maybe GI infection, you can get an episode of urticaria because of this infections in the body as well. Third comes inhalation. Inhalation is something where you inhale something that is either a pollen or it could be some dust allergies, which can trigger your urticarial episodes. So what can I make out from what you just said is that there can be n number of causes and Right. anything and everything can cause actually urticaria. Now, doctor, I would like to understand how serious can it be? Is it a life-threatening thing or nothing to worry at all? See, basically, urticaria is normally considered to be more of a discomfort to the patient. It can affect your quality of life drastically. It can affect your sleep pattern and it can actually give you a kind of like no sleep in the at night because of the itching and multiple disturbances which can happen. Second thing which is associated with urticaria is angioedema. Angioedema is a condition where there is a swelling of the lips, swelling of the eyelids, or there could be internal swelling. Particularly if this swelling affects your respiratory tract, then it becomes, then some people do face problems like breathing difficulties and it can cause choking and all these issues, loose motions, whatever it is external could also be internal. So we need to see whether there is any internal swelling happening in any of the body organs, which might give us trouble in the long term, or it could be an acute episode and you might have to rush to an emergency unit immediately if it causes a lot of breathing difficulties or if there is a lot of swelling on the lips, eye area, because that could be fatal in certain cases. So in general, it's not a life-threatening thing, but in some cases, in certain cases, it can actually become serious. So it's important to go and consult a doctor. Doctor, I would also like to know that, as we mentioned, that we can actually classify urticaria into different things, acute and chronic. So we would like to understand them, that what is acute urticaria and what's chronic urticaria. See, basically, as you told already, that urticaria happens to every individual once in lifetime. I mean, by at least 90% of us face urticarial episode at least once in lifetime. Now, most of this urticarias are acute. Acute is something which is classified as less than 6 weeks duration. If any urticarial episode lasts less than 6 weeks, we call it as an acute urticaria. But if the episode lasts more than 6 weeks, it is classified as chronic urticaria. Okay. So is there any difference in treating or the treatment or the time taken to for that to get cured? See, acute urticaria mostly happens because of certain acute triggers, which could be some food items, which could be some infection, as we discussed, urinary tract infection or respiratory tract infection, that it could be an acute episode. The moment the episode goes off, the toxins liberated in the body are over, and that is how the urticarial episode gets over. But in chronic cases, most of the times, this chronic cases could be
driven by certain food items which are constantly coming in your food, or it could be certain allergens which are there in the environment which you can't eliminate, which could be dust, which could be pollen, which could be danders. Now sometimes many of us do have pet animals at home, and pet danders also can cause urticaria. So this kind of urticaria is chronic and can require long-term therapy, and it might need some immunosuppressive medicines, and it does not only like कि only allergy की medicine से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ऐसे cases में you have to give steroids, you have to give immunosuppressives. So there are multiple factors which are associated, which we need to evaluate before we come to a conclusion whether we need to start with these medicines or whether we can manage it as just an acute episode and just continue with antihistamines. Right. चूंकि आपने एंटी एलर्जेंस का जिक्र किया, कई बार ये होता है चूंकि एलर्जी की वजह से हो गया, और जैसा कि हमने कहा कि बहुत कॉमन है, सबको कभी ना कभी 90% केसेस में अर्टिकेरिया का सामना करना पड़ता है. ऐसे में एक और कॉमन ट्रेंड जो हमारे देश में है वो ये कि हम ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत आराम से ले लेते हैं, और एंटी एलर्जेंस के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, तो दे विल जस्ट गो टेक अ मेडिसिन और उनको रिलीफ मिल जाएगा मे बी 1-2 दिन के लिए. तो ये प्रैक्टिस बहुत नॉर्मल है अर्टिकेरिया के भी केस में. तो क्या ये सेफ है कि हम बिना डॉक्टर से सलाह लिए खुद से अगर एक एंटी एलर्जेंट ले ले, क्योंकि हमको पता है बहुत ज्यादा एचिंग हो रही है, एलर्जी तो है ही, तो थोड़ा आराम मिल जाएगा? मैं नॉर्मली आई डोंट रिकमेंड, मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ कि खुद से सेल्फ मेडिकेट करो एलर्जीज के लिए. आई डू अंडरस्टैंड एक आध एपिसोड ऐसा होता है जहाँ पे हम डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं कर पाते, बट नाउ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन एज वेल. योर डर्मेट वुड बी अवेलेबल. आप डॉक्टर का कंसल्टेशन लेकर ही मेडिसिन शुरू करो. देयर आर 2 रीजंस फॉर इट. बेसिकली एंटीहिस्टामिन्स या एलर्जी मेडिसिन जो होती है बहुत सारी आती है, कौन सी आपके लिए बेस्ट है वी डोंट नो. सेकेंड थिंग इज, इसको ऐसे ट्रीट ना करें कि जहाँ पे एक एपिसोड आ गया, आपने पैरासिटामोल का गोली लिया, जैसे बुखार है पैरासिटामोल का गोली ले लिया, बुखार चले गया, खत्म. जब हम एलर्जी को ट्रीट करते हैं, एलर्जी का ट्रीटमेंट नीड्स टू बी कंटिन्यूड फॉर सम स्पेसिफिक ड्यूरेशन. आप जस्ट 1-2 मेडिसिन 1-2 दिन के लिए लेकर खत्म कर रहे हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एलर्जी एक्यूट की जगह क्रोनिक की तरफ चले जाए. और अगर वो क्रोनिक की तरफ चले जाता है तो आपका मेडिसिन ओवरऑल बहुत बढ़ने वाला है, आपका ड्यूरेशन बढ़ने वाला है, आपका प्रॉब्लम एक्चुअली कम होने की जगह पे यू आर एक्चुअली मेकिंग इट जस्ट go inside the body for some time and then you will have a relapse. So it is always better कि आप एक proper course को follow करो. अगर investigations की जरूरत है तो आपके डॉक्टर आपको investigations के लिए बोलेंगे कि आप ये टेस्ट करवाइए, because we need to know the cause. अगर हमें cause पता है तो ही हम अर्टिकेरिया को properly treat कर सकते. Though in many cases सारे investigations negative आते हैं और then we do not have any cause for urticaria, but still we have to rule out कि कुछ है तो नहीं जिसकी वजह से हमें हो रहा है. राइट. तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको अर्टिकेरिया हो रहा है, चूंकि अब आपको सिम्टम्स भी पता है, अब आपको पता है कि ये कैसा दिखता है, तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि आपका अक्यूट हो सकता है अर्टिकेरिया हो और आप उसको सेल्फ मेडिकेशन या दोस्तों ने जो दवाई रिकमेंड कर दी जो उनके काम आई थी उससे खुद को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका केस और ज्यादा वर्स हो सकता है, आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है, आपका अर्टिकेरिया एक्यूट से क्रॉनिक में शिफ्ट हो सकता है. तो ये गलतियां ना करें, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिले. एक तो जैसा कि डॉक्टर पल्लवी ने कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस तो वो बहुत जल्दी 1-2 घंटे में खुद से ही सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर वो हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. डॉक्टर, आपने एक जगह ये भी जिक्र किया कि चूंकि कंटिन्यूअस इचिंग होता है तो रात में नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है. आई कैन एक्चुअली इमेजिन कितना डिस्कम्फर्ट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होता होगा जो सफर कर रहे हैं अर्टिकेरिया से. ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, कई पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि उनको रात में अर्टिकेरिया उनका और ज्यादा वर्स हो जाता है और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इसके पीछे की वजह क्या है? बेसिकली क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर बिजी आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है एंड मेनी टाइम्स यू डू नॉट फील दैट ईचिंग सेंसेशन. बट जैसे ही रात के समय वी हैव अ सर्कैडियन रिदम इन द बॉडी. सर्कैडियन रिदम ये होता है जहाँ पे आपके कुछ हार्मोन्स पर्टिकुलर टाइम पे रिलीज होते हैं बॉडी में. दैट इज वन रीजन वेर यू गेट अर्टिकेरिया मोस्टली एट नाइट. सेकेंडली, आपका माइंड जो होता है वो माइंड आपका फ्री होता है इवनिंग टाइम पे या नाइट टाइम पे, जिसकी वजह से आपको एलर्जी या आपका ईचिंग सेंसेशन का जो परसेप्शन होता है वो बढ़ जाता है. राइट.
तो अदर देन दी साइंटिफिक और बायोलॉजिकल रीजंस, एक रीजन डेफिनेटली ये है कि हम दिन के टाइम प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, लेकिन रात में चूंकि हमारे पास ज्यादा वक्त होता है तो हमारे दिमाग में बार बार वही चीज चलती है और इचिंग डेफिनेटली बढ़ जाता है। डॉक्टर, कई बार जो पेशेंट्स हैं वो ये भी शिकायत करते हैं कि उनको बहुत थकान महसूस होती है, दे फील वेरी टायर्ड, फटीग, तो ये भी होता है अर्टिकेरिया में? बेसिकली ना अर्टिकेरिया इज अ वेरी डिस्टर्बिंग कंडीशन। आप अगर पीसफुली सो नहीं पाए तो डेफिनेटली यू विल फील फटीग थ्रू आउट द डे। सेकेंडली कुछ कुछ एंटीहिस्टामिन्स होते हैं जिसकी वजह से एक नींद आती है या फिर एक तरीके का सेंसेशन माइंड में रहता है जहाँ पे कि थक गए या जाके सोना है। तो ये जो सेंसेशन होता है ये कुछ मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, अर्टिकेरिया की वजह से भी हो सकता है, और अर्टिकेरिया के साथ होने वाली परेशानी जैसे लैक ऑफ स्लीप और बाकी फटीग जो फीलिंग रहता है बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग, ये सब चीजें जो होती है कंट्रीब्यूट करती है टू गिव एन फटीग एक्सपीरियंस टू द पेशेंट। राइट, जिस तरह से आप बता रही है वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टिंग ये सिचुएशन है, ही पूरे टाइम इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, आपकी एक तरह से जो पब्लिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो ऑलमोस्ट खत्म है, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो आप दिमाग में यही चलता है कि अरे मैं बहुत इच कर रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस इससे होता ही है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बिना ट्रीटमेंट के कोई रह पाते होंगे, लेकिन फिर भी अगर इसका ट्रीटमेंट सही से ना किया जाए या सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, या दोस्तों जिसको हुआ था उससे उनका प्रिस्क्रिप्शन लेके खुद पे एक्सपेरिमेंट करना, ये सब चीजें में नॉर्मली क्योंकि लोग जाया करते हैं अपना वक्त, तो ऐसे में अगर इससे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो व्हाट आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अर्टिकेरिया? बेसिकली ना एवरी बॉडी इज डिफरेंट। सो एक प्रिस्क्रिप्शन जो आपके दोस्त के लिए काम आया है वो आपके लिए काम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो डोंट फॉलो एनी स्टैंडर्ड। इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन को आप उठाकर सबके लिए यूज कर सके ऐसा नहीं होता है। बॉडी इज अ इट इज नॉट अ मशीन, इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिफर इंडिविजुअली। टाइम के साथ डिफर होती है, एज के साथ डिफर होती है, ब्रदर सिस्टम में डिफर होती है, फैमिली में डिफर होती है। तो यू कांट हैव वन स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर एवरीवन। सो इट इज लाइक वन शर्ट डज नॉट फिट ऑल, सेम वे वन मेडिसिन डज नॉट फिट ऑल। वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम इसे नहीं ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो एलर्जी सेल्स है वो बढ़ते रहेंगे। नॉर्मली क्या होता है ना, when we have any kind of allergies we have memory cell development। हमारी बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से जब हम सेकेंड टाइम उस चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे वो मेमोरी सेल्स और एक्टिवेट होते हैं और पहले से बड़ा एपिसोड होता है अर्टिकेरिया का। तो फर्स्ट टाइम जब आया था तब बहुत ही थोड़ा सा आया था, खुद से चले गया, यू डिडंट ट्रीट, इट वाज ऑल ओके। सेकेंड टाइम जब आया, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इफ आई एम एलर्जिक टू मशरूम, अगर मैंने फर्स्ट टाइम मशरूम खाया है मुझे थोड़ा सा रैश आया जो आधे एक घंटे में चले गया। सेकेंड टाइम जब हमने मशरूम खाया मेरा एलर्जी सेल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगी बिकॉज मेरे यहाँ पे मेमोरी सेल्स ऑलरेडी नो कि आई एम एलर्जिक टू, दोज मेमोरी सेल्स विल कम इनटू एक्शन एंड वो जो सेल्स है वो एलर्जी एपिसोड को बढ़ाते जाएंगे। तो एज टाइम पासेस your allergy would increase. That's why right treatment for right duration is very very important. इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन में, ओवर द काउंटर मेडिकेशन में अपना वक्त जाया ना करें। प्लीज गो एंड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, otherwise you'll end up worsening your condition, so that's important, go and consult your doctor. ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि खाने पीने की बात भी हो रही है, एंड वी ऑल नो कि कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसको लेके नॉर्मली एलर्जीज होती है, सी फूड है, नट्स हैं, एग से कई लोग एलर्जिक होते हैं। ऐसे में क्या कोई डाइटरी प्रिकॉशन है, कोई डूज एंड डोंट्स है फॉर द पेशेंट्स ऑफ अर्टिकेरिया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है वी मेक अ अम्ब्रेला लिस्ट, लाइक यू नो, अच्छा लोगों को ब्रिंजल से एलर्जी होती है, नट से होती है, एग से होती है, सी फूड से होती है, मैं इनमें से कुछ भी नहीं लूं। तो कई बार लोग ये भी करते हैं, तो वो कितना सही है, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं? बेसिकली क्या होता है ना, जब आपको फर्स्ट टाइम एलर्जीज हो रही है तो राइटली वी गिव यू एन अम्ब्रेला लिस्ट कि ट्राई टू अवॉइड दिस फूड आइटम्स, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि कोई एक और एलर्जन हमारी बॉडी को एक्टिवेट करे जो ऑलरेडी एलर्जी वाली बॉडी है जिसमें वो एक्टिवेट कर दे तो और एलर्जी बढ़ जाए। तो बेसिकली फर्स्ट अम्ब्रेला लिस्ट में हम चाइनीज, फिश, प्रॉन्स, चने का दाल, नट्स, अंडा, egg, these are the things which tell them to avoid, but this is not a standardized list. It is just a precautionary measure
इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि आपको इसकी एलर्जी है और आप यही चीजें बंद कर दोगे तो आपका एलर्जी ठीक हो जाएगा. Many times we have to keep an observation ki what is triggering. It is over a period of time that we come to know ki this triggers. Or you can do a allergy, food allergy testing जो available है nowadays. But food allergy testing is not 100% specific कि once आ गया ये बंद कर दिया तो ये बंद ही हो जाएगा. But yes, it gives you a guideline कि आप क्या बंद कर सकते हो. Because otherwise क्या होता है ना, अगर बच्चों में कभी एलर्जी हो जाता है और डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि ये चॉकलेट नहीं खाना है, तो उस बच्चे को उसकी मम्मी कितना भी जिद हो जाए, कुछ भी हो जाए, चॉकलेट नहीं देगी तो नहीं देगी, बिकॉज एक डर बैठ जाता है. सो बेसिकली ये सब चीजें जो होती है जहाँ पे आप अननेसेसरी कोई चीज ना बंद करें. बट yes, if your doctor has advised you to restrict certain food items, restrict it for couple of days. Restart कर सकते हैं हम लोग. Restart small amount में, small quantity में, one by one we restart the food items as well. This process is called as desensitization. जैसे अगर मुझे कोई चीज की एलर्जी है और मुझे वो चीज बहुत पसंद है, तो मुझे वो चीज के लिए अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है ताकि मेरी बॉडी रिएक्ट ना करे. तो इसको इम्यूनोथेरेपी, इन शॉर्ट इट इज लाइक अ वैक्सीन. सो इट इज जहाँ पे आप छोटे छोटे डोज में आपकी बॉडी को वो एलिमेंट दे रहे हो जहाँ पे आपके वो छोटे डोज के लिए आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है और साथ में आपके एंटीबॉडीज तैयार हो रही है. So this is how we deal with food allergies or maybe even dust allergies if required. Right. डॉक्टर आपने ये भी जिक्र किया कि अब जो है ब्लड टेस्ट इस तरह के हो गए, एलर्जी टेस्ट रादर, जहां से हमको ये पता चल जाता है कि हमको किन किन चीजों से मोटे तौर पर एलर्जी है. तो क्योंकि लोगों को भी इसके बारे में काफी अवेयरनेस है, कई बार वो लोग खुद ही चले जाते हैं लेबोरेटरीज में ये टेस्ट कराने के लिए, एंड देन दे गो टू द डॉक्टर कि सी आई हैव गॉट माय फूड एलर्जी टेस्ट डन, दीज आर द रिपोर्ट्स एंड नाउ प्लीज सजेस्ट व्हाट आई शुड डू. आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्या डॉक्टर के कहने पे ही टेस्ट कराने चाहिए? बिकॉज दीज टेस्ट आर नॉट वेरी पॉकेट फ्रेंडली, दीज आर एक्चुअली एक्सपेंसिव टेस्ट. तो डॉक्टर के कहने पे ही करानी चाहिए या जस्ट एज अ फ्रेंड क्योंकि सब लोग करा रहे हैं तो कोई भी करा सकता है? See, basically, most of the people who suffer from urticaria do not require allergy testing because it could be just an acute episode. Acute episode 60 to 70% लोगों में रहता है. 100% urticaria में से 60 to 70% are only acute urticarial episode और 30% लोगों में ही होता है. ये 30% में भी we don't know whether they are actually allergic to food or there are certain other things which are responsible for the allergy. So it makes no sense कि हर एक का टेस्ट कर लिया जाए. It does not make sense. So basically I would always suggest let your doctor decide. Second thing होती है कि आपके पास इतने सारे एलर्जेंस है, आप कौन कौन से एलर्जेंस के लिए टेस्ट करना है, आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? So you need a little bit of observation, understanding, mutual understanding between the doctor and the patient that ये चीज है जिसमें हमने नोटिस किया कि हमको बढ़ता है, and that is how your doctor will decide what allergen testing you need. There are allergens which could range from 200 to 600 allergens which can be tested. How will you find out आप किसके लिए टेस्ट कर रहे हो? आप unnecessary you're going to waste your money without any conclusive evidence. राइट. तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए. सी द आयरनी इज दैट वी आर एक्चुअली वेस्टिंग आवर मनी ऑन द मेडिसिन्स इफ वी आर डूइंग सेल्फ मेडिकेशन और ओवर द काउंटर मेडिकेशन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कॉस्ट क्या है और आप दवाइयां खरीदे जा रहे हो या टेस्ट करा रहे हो फूड एलर्जी के लिए. तो यहाँ आप जहाँ पैसे वेस्ट कर रहे हो उसको ना वेस्ट करके आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए, उस समय का सदुपयोग कीजिए. हो सकता है आपको डेफिनेटली होगा ही, आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा, आपको पता चलेगा कॉज क्या है, और अगर नहीं पता चल पा रहा है तो एटलीस्ट दे विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. सो प्लीज गो टू द डॉक्टर, ट्रस्ट योर डॉक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ये भी होता है डॉक्टर, स्पेशली क्रॉनिक अर्टिकेरिया में, क्योंकि आपने बताया बहुत लंबा भी कई बार इसका इलाज चलता है या दवाइयां लेनी पड़ती हैं. ऐसे में पेशेंट्स जो हैं वो मान लीजिए उन्होंने 1 महीना दवाइयां ली, उनको लग रहा है अच्छा अब तो मुझे आराम हो रहा है, फिर वो खुद से ही दवाई लेना छोड़ देते हैं. फिर 2-3 महीने बाद उनको फिर से वही सिम्टम्स होते हैं. फिर वो कहते हैं अच्छा मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन तो रखा है, तो विदाउट इवन टेलिंग द डॉक्टर कि मैंने स्टॉप कर दिया या मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो खुद ही केमिस्ट के पास जाके फिर से दवाइयां ले आके फिर से खुद से स्टार्ट करते हैं. हाउ सेफ एंड डेंजरस और डेंजरस इट कुड बी?
See, this practice is very common in India because in India we get medicines very easily on the counter. If you go to the outside world, you do not get medicines without a prescription wherein the date is not mentioned and without going through a proper channel. So this is very challenging in countries like India. यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि when you never know whether your doctor had given you steroids earlier. A pharmacist many of the farmers medical stores जहाँ पे pharmacists available नहीं होते, there are only boys who are giving the medicine. They don't even bother whether it was steroid, whether it was not steroid. और आप steroid लेते जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप steroid पे थे. See, when a doctor gives it for a limited duration. Steroids are very safe if they are given for a limited duration and under the supervision. Problem ये होता है कि steroid को अगर आप irrespective of timing, irrespective of duration ले रहे हो, तो you will see all the side effects of steroids. तो your body will get dependent on it. Second thing is आपका dose जो है, जो medicine आप पे पहले काम कर रही थी, अगर गलती से वो medicine पे आपका like if it has started creating no response kind of thing, that medicine is going to become helpless for you in the near future. So always जब भी आपको कोई episode जो बहुत दिनों बाद हुआ है, please consult your doctor. You need to know the cause of it and then treat it. अर्टिकेरिया के बहुत सारे कारण है, जैसे हमने डिस्कस किया था in the initial of our session that urticaria has multiple reasons. Every time it can't be the same reason, so your medicine can't be the same. Right. इसीलिए please go and check with your doctor. Please trust your doctor and do complete the course of the treatment. That's very important. And stay away from self-medication or over-the-counter medication. किसी भी केस में that's really dangerous. डॉक्टर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अर्टिकेरिया जेनेटिक होता है? अगर किसी पेरेंट को है तो क्या चांसेस हैं कि बच्चे को होंगे the kid at risk? See, basically, urticaria, we do not call urticaria as hereditary. अर्टिकेरिया का एक कंडीशन होता है, एक सबसेट होता है हेरिडिटरी एंजियोइडीमा करके, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर है, जहाँ पे वो आपका जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है. बट इन जनरल वी डू नॉट से अर्टिकेरिया टू बी हेरिडिटरी ट्रांसमिटेड. यस, ये हो सकता है किसी किसी में ये देखा जाता है कि अगर पापा मम्मी को मशरूम की एलर्जी है तो बच्चे को भी होती है. So that is something which is okay, but you can't label it as कि hereditary है, मम्मी पापा को है तो बच्चे को होना ही है. It is not necessary. ओके अच्छा जैसे कि आपने बताया कि अर्टिकेरिया से डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस होता है. जो भी इससे सफर कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रेस में रहते ही हैं, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली इचिंग हो रहा है. ऐसे में क्या इस स्ट्रेस की वजह से अर्टिकेरिया एग्रीवेट होता है? Yes, stress can aggravate urticaria because stress releases certain hormones in the body which can trigger the urticarial episodes. So stress is definitely one of the factors जहाँ पे urticaria increase हो सकता है या urticarial episode increase हो सकता है. क्रॉनिक अर्टिकेरिया पे जब हम बात कर रहे थे, मैं पूछना भूल गई, कई पेशेंट्स वो ये जानना चाहते हैं कि क्या अर्टिकेरिया कभी ठीक होगा? मतलब हम कब तक इलाज कराते रहेंगे? क्या कोई टाइम ड्यूरेशन है? कोई ये कह सकता है कि हाँ ये ठीक होगा पूरी तरीके से? ऑनेस्टली जितना फ्रस्ट्रेटिंग वो पेशेंट के लिए उतना फ्रस्ट्रेटिंग वो डॉक्टर्स के लिए भी है ट्रीट करना, बिकॉज क्रोनिक अर्टिकेरिया इज रियली चैलेंजिंग टू ट्रीट. बट we can always give a trial of immunosuppressive medicines which helps in chronic urticaria. आजकल कुछ इंजेक्शंस भी अवेलेबल है जो इंजेक्शंस आल्सो गिव यू अ गुड रिलीफ इन क्रोनिक अर्टिकेरिया. ओके डॉक्टर, स्किन एलर्जीज में एक और नोशन लोगों के दिमाग में जो रहता है वो ये कि अरे उसको हुआ है तो उससे मुझे हो जाएगा और ये स्प्रेड होता है, ये कंटेजियस है. अर्टिकेरिया को लेके रियलिटी क्या है? Urticaria is not at all contagious. It does not transmit by touching or by wearing clothes of each other. Urticaria में कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ से वो ट्रांसमिट हो सकता है. Only thing is कि food items many times ना we see like कोई होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए और 3-4 लोगों को वो एलर्जिक एपिसोड हो गया, बिकॉज देयर कुड बी सर्टेन फूड आइटम और फूड में जो केमिकल होता है जिसके कारण सबकी बॉडी ट्रिगर करी है. बट इट डज नॉट मीन कि एक को हुआ था उसकी वजह से बाकी को फैला है. इट्स नॉट कंटेजियस.
ओके। डॉक्टर, आपने एक और चीज मेंशन की थी जब हम फूड एलर्जीज को लेकर बात कर रहे थे कि चाइनीज फूड आइटम से कई लोगों को होता है, तो उसका रीजन क्या है? क्या जो सॉसेस में कलर प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि ज्यादा एलर्जी हो सकती है? Yes, basically Chinese food items में Ajinomoto, soya sauce, these are the things which are known to cause allergies because of the strong जो flavors होते हैं उनके, and plus it is actually more of a episode which is kind of transient कि आपने खाया और तुरंत चले गया. But that is always known कि Chinese food items are known to cause allergies because of the sauces. Okay, we'll also take some of our viewers' question. Pari Yadav पूछ रही है, I have a red spot on my hand. How can I reduce it naturally? Pari, red spot on the hand can be anything. It is not necessary कि वो आपका अर्टिकेरिया है, वो आपका एक्जिमा हो सकता है, वो कोई स्किन डिसऑर्डर हो सकता है. इट इज ऑलवेज बेटर कि आप कंसल्ट करिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को, बिकॉज उसका डायग्नोसिस पहले चाहिए, तभी हम ट्रीटमेंट बता पाएंगे. नेचुरली जो आप पूछ रहे हो, नेचुरली में यू कैन अप्लाई आइस एंड सी इफ द रेडनेस रिड्यूसेस. अगर रेडनेस रिड्यूस हो रहा है तो इट कुड बी जस्ट एन एक्यूट एपिसोड ऑफ अर्टिकेरिया, स्टार्टिंग ऑफ द अर्टिकेरिया, जिससे वो सेटल हो सकता है. राइट. जो कि होम रेमेडी की एक तरह से बात भी परी ने पूछी, आपने बताया कि आइस लगा सकते हैं. कई बार अर्टिकेरिया के केस में भी ऐसा होता है, लोग होम रेमेडी पहले करना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा आराम मिले, तो कई बार एलोवेरा जेल या एलोवेरा का जो प्लांट होता है डायरेक्टली उसके लीव्स में से जेल लेकर वो लगाते हैं. हाउ सेफ दैट इज? क्योंकि एलोवेरा में सूदिंग इफेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन क्या वो अर्टिकेरिया के केस में ठीक है लगाना? बेसिकली ना एलोवेरा, कैलामाइन लोशन, ये सब आप या मॉइस्चराइजर विल ओनली गिव यू सूदिंग इफेक्ट. तो अगर आप उसको सूदिंग इफेक्ट की ओर से देख रहे हो तो यस यू कैन यूज इट, बट इट डज नॉट मीन कि वो आपका क्योर कर सकता है. वो आपको सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देगा. तो डॉक्टर के पास जब तक हम पहुंचे उससे पहले अगर बहुत ज्यादा इच कर रहा है तो थोड़ा बहुत ये जो आपने मेंशन किया, कैलामाइन लोशन या मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल हम लगा सकते हैं फॉर द सूदिंग इफेक्ट. ओके. श्वेता मेहता पूछ रही है, आई हैव बीन डायग्नोस्ड फॉर क्रोनिक अर्टिकेरिया इन अ ट्रीटमेंट टेकिंग मेडिसिन्स फॉर मोर देन 1 year. Itching became a big problem for me. Is there a permanent cure for this? Shweta, basically I won't say permanent, but ask your doctor if he or she can put you on some other medications apart from only antihistamines, because many times we have seen that when you put the patients on immunosuppressive medicines or you put them on injections, they respond very well and your quality of life would definitely improve. Okay. Rajan Mehra पूछ रहे हैं, can urticaria affect internal organs? Yes, as I told you, if urticaria में angioedema होता है तो it is something which is going to affect your internal organs, which can be in the form of swelling over the respiratory tract, which causes difficulty in breathing. It can cause swelling of the internal lining of the GI system, जिससे कि लूज मोशंस और वॉमिटिंग, ये सेंसेशंस होते हैं, ये सिम्टम्स हो सकते हैं. तो अर्टिकेरिया कैन अफेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन्स. इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिम्टम्स को लाइटली मत लीजिए. प्लीज गो एंड कंसल्ट विद अ डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिस केस. सोमू शर्मा पूछ रहे हैं, अगेन जो होम रेमेडी को लेकर हम बात कर रहे थे उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या नीम का ट्रीटमेंट इससे फायदा होगा अगर मुझे बारिश में स्किन प्रॉब्लम्स होगी? हालांकि उन्होंने बहुत ही वेग टर्म यूज किया, स्किन प्रॉब्लम, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो क्या नीम? बेसिकली ना नीम इज कंसिडर्ड टू बी एन एंटीसेप्टिक और इसकी वजह से काफी यूज करते थे. मैं नॉर्मली या कोई डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करता है कि डायरेक्टली आप नीम का पत्ता लेकर घस लो या उसको पीस लो और वो पेस्ट लगाओ, बिकॉज इट कैन कॉज इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिससे आपकी स्किन रिएक्ट हो सकती है. अगर आप सिर्फ नीम का पत्ता उबालकर उस पानी से नहाना चाहते हो, यस यू कैन ट्राई दैट, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट लगाना डायरेक्टली स्किन पे इज नॉट समथिंग विच वी एज डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस. सोमो, अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी परसिस्ट करती है तो प्लीज गो एंड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. हेमंत सिंह पूछ रहे हैं, मुझे बचपन से एलर्जी के कारण व्हाइट स्पॉट्स हैं गले में, तो मैम क्या ये माँ से बेबी को हो सकता है? व्हाइट स्पॉट्स नॉर्मली कंटेजियस नहीं होते हैं, इट डज नॉट स्प्रेड, लेकिन व्हाइट स्पॉट्स के बहुत सारे कारण होते हैं. अगर वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुए हुए व्हाइट स्पॉट्स है तो डेफिनेटली वो ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम बेबी टू मदर.
बट अगर वो व्हाइट स्पॉट्स विटिलिगो के या फिर आपका इचिंग करने के बाद वो व्हाइट स्पॉट्स तैयार हुए हैं आपकी बॉडी पे, तो वो कंटेजियस नहीं होते हैं। बट ये व्हाइट स्पॉट कौन सी चीज का है वो पता करना जरूरी है, इसलिए आपको डॉक्टर से एक बार पता करके फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि ये व्हाइट स्पॉट्स मदर से बेबी को जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, रेखा सिंह है, पूछ रहे हैं, I get urticaria rash every alternate day. The rash starts slowly and spreads all over my body, including my head. It is really itchy, big round bumps form. I have to take steroid injections to get rid of this. It's been there since more than 2 years. I tried all medicines. Is there any permanent treatment? Basically, this question is something which we already answered in the previous इसमें, but Yes. रेखा जी मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जब मेडिसिन आपके स्टेरॉइड वगैरह शुरू हुए, स्टेरॉइड कांट बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर यू। आपको दूसरा कुछ देखना पड़ेगा जिसमें आपके डॉक्टर्स आपको दूसरी मेडिसिन पे डालना चाहते हैं क्या, या फिर उनसे आप डायरेक्टली अर्टिकेरिया के कुछ इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। फाइंड आउट इफ दैट वर्क्स फॉर यू, बिकॉज आपको इसमें ट्रायल एंड एरर करते हुए आपके कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट वर्क कर रही है। बट स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म के लिए आर नॉट गोइंग टू बी सेफ, सो इट इज बेटर दैट यू फाइंड सम अल्टरनेटिव ऑप्शन इफ पॉसिबल अलोंग विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट। बिल्कुल, तो आई एम श्योर रेखा को जल्द ही आराम मिलेगा और इस तरह से कंटिन्यूअस स्टेरॉइड इंजेक्शंस या टैबलेट्स पर उनको नहीं रहना पड़ेगा। एक और चीज डॉक्टर, पिछले दो ढाई साल में स्पेशली जैसे हम कोविड एरा कहते हैं, कई केसेस आए, कई पेशेंट्स ने शिकायत की कि उनको कोविड हुआ और उसके बाद चेहरे पे हाइव्स हुए, या उनको हाइव्स हुए और फिर जब उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला वो कोविड पॉजिटिव है। तो कोविड और अर्टिकेरिया, इसका कोई कोरिलेशन है? कोविड इज एन इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनिशियली भी कि कोई भी इन्फेक्शन बॉडी का कैन ट्रिगर अर्टिकेरिया। तो कोविड में इट वाज कॉमनली सीन कि दैट आफ्टर कोविड मेनी ऑफ the COVID patients saw urticarial episode during, before, or even after the COVID was like after they became COVID negative. दूसरी चीज ये थी कि कोविड के वक्त वी वर ट्राइंग लॉट ऑफ घरेलू नुस्खा, काढ़ा पी रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई स्पेसिफिकली ये डालो वो डालकर बनाकर ये हो रहा था, तो कुछ ना कुछ ट्रिगर करके अर्टिकेरिया तब भी बहुत सारे लोगों में देखा गया था। सो यस, कोविड इटसेल्फ इज नोन टू कॉज कोविड मेडिसिन, और कोविड के साथ करे हुए घरेलू नुस्खे की वजह से भी अर्टिकेरिया देखा गया है। सो दिस इज, यस, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड। कोविड एंड अर्टिकेरिया डेफिनेटली हैड अ रिलेशन। ओके, लेकिन वो क्रॉनिक नहीं था, वो एक्यूट उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी ठीक हो गया। ऐसे ही वैक्सीनेशन के टाइम पे कई लोगों ने शिकायत की, हालांकि वो भी तुरंत ठीक हो गया, सबसाइड हो गया, तो ऐसे भी केसेस आए। सी बेसिकली वैक्सीनेशन में सुपर सेंसिटिव स्किन जो होती है या हाईली सेंसिटिव जो लोग होते हैं, दे कैन रिएक्ट, सो बट द परसेंटेज वाज वेरी वेरी मिनिमल, तो इट वाज नॉट लाइक वेरी बिग परसेंटेज की बहुत सारे लोगों को हो रहा है, वेरी मिनिमल लोगों में ये देखा गया है। राइट, और वो भी बहुत जल्दी कुछ घंटों में ही सबसाइड हो गया है। तो अगेन, अगर आपके दिमाग में है कि अगर हम वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो फिर हमें अर्टिकेरिया हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, होगा भी तो वो एक एलर्जी, जैसे वैक्सीनेशन के नॉर्मली कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं इन वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स, सो इट इज नॉट समथिंग जो सबको होने वाला है। So don't worry, take your COVID dose properly. That is important to save yourselves from COVID infection. Definitely. Shubham Maran पूछ रहे हैं, मैम, what is the treatment of cold urticaria? See, basically cold urticaria जो होता है, cold urticaria के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। अदरवाइज इट इज ऑलवेज सेड कि आप जब कोल्ड अर्टिकेरिया तभी होगा जब आप ठंडे पानी से नहा रहे हो या आप एक्सट्रीम कोल्ड में आ रहे हो। तो इन दिस केसेस ना इट इज बेटर टू कीप योर बॉडी वार्म, बिकॉज जैसे ही वार्मथ मिलता है अर्टिकेरियल एपिसोड वैसे ही सेटल हो जाता है। तो लुकवार्म वाटर यूज करिए, डू नॉट यूज वेरी कोल्ड, अवॉइड ईटिंग कोल्ड आइटम्स व्हिच कैन ट्रिगर अर्टिकेरिया। जहाँ पे आपको पता है कि आपको इसकी वजह से हो रहा है वो चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर हमें पता है कि हमें किस चीज से दिक्कत हो रही है, उनको हम अवॉइड करेंगे तो हमें डेफिनेटली राहत मिलेगी। लेकिन कोई भी दिक्कत है तो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई बार वेदर चेंज में, या बहुत गर्मी है, या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, या बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, इन लोगों को भी अर्टिकेरिया की शिकायत होती है।
तो या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें मान लीजिए अभी तक किसी चीज से एलर्जी नहीं थी, मैं एग खा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सडनली मैं नोटिस कर रही हूँ कि अच्छा पिछले 5 बार ऐसा हुआ कि मैंने एग खाया और मुझे अर्टिकेरिया हुआ। तो क्या ऐसे में हम कोई एक लिस्ट बना के रख सकते हैं कि ताकि जब हम डॉक्टर के पास जाए तो हमें एक एटलीस्ट ट्रेस करने में थोड़ी आसानी हो कि ओके हो सकता है ये एक पैटर्न है? या एक अगर इट इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे मैंने पहले भी जब हम एलर्जी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको कुछ आइटम्स ऐसे लगते हैं जिससे आपको एलर्जीज हो सकती है, तो वी कैन ऑलवेज कीप अ नोट ऑफ इट एंड गेट अ टेस्ट डन स्पेसिफिकली फॉर दोज थिंग्स इफ नीडेड। मोस्टली क्या होता है ना कि अर्टिकेरिया किसी को भी कभी भी हो सकता है, तो यू कांट से कि मैं मशरूम पहले से खा रही थी, आज मैंने खाया तो क्या क्यों रिएक्ट किया। इट इज नॉट नेसेसरी, अर्टिकेरिया कैन हैपन टू एनीबडी। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे आपको अगर कंटिन्यूस वो चीज से पता चल रहा है कि आप वो खा रहे हो और उसके बाद आपको रिएक्ट हो रहा है, तो वो चीजें आपको बंद करनी जरूरी होती है। फूड आइटम्स में ये चीज बहुत कॉमनली देखी जाती है। बाकी जगह जैसे कि मेडिसिन होती है, मेडिसिन में अर्टिकेरियल एपिसोड बहुत क्विकली आता है, फास्ट आता है। तो उसमें तो एक बार अगर आपने एक मेडिसिन को आप अर्टिकेरियल एपिसोड है कोई चीज के लिए, तो डेफिनेटली 90% ऑफ द टाइम्स यू विल रिएक्ट व्हेनेवर यू टेक दोस मेडिसिन। और उसमें आई थिंक ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किस मेडिसिन से हमें एलर्जी है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और कहीं लिख के नॉर्मली रखते हैं जिनको और मेडिसिन की एलर्जी होती है, आई ऑलवेज सजेस्ट देम कीप एन एलर्जी कार्ड इन योर वॉलेट और पॉकेट। कभी अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर आप आपका हेल्प नहीं कर रहे और आपके नेबर्स को या और किसी को आपको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ रहा है कहीं, तो डॉक्टर्स नॉर्मली चेक योर पॉकेट्स टू सी इफ देयर इज एनी एलर्जी कार्ड, बिकॉज इफ वी नो वी डू नॉट गिव दोज मेडिसिन, बिकॉज बहुत सारे लोग पेन किलर्स को एलर्जिक होते हैं और कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कुछ हो जाए जहाँ इमरजेंसी में हमें जाना पड़े, तो वहां पे सबसे पहले होता है कि पेन किलर्स एंटीबायोटिक्स देने में आ जाते हैं। तो we can avoid all these things. So keep your family members aware about your allergies. Keep an allergy card in your pocket. It is always going to be better for you. ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि एलर्जी कार्ड एक हमेशा हम साथ में रखें कि हमें किन खासकर दवाइयों से एलर्जी है और अपनी फैमिली को भी जिन चीजों से हमें एलर्जी है उनके बारे में उनको जानकारी दे के रखें। श्रद्धा पूछ रही है, ये जो सवाल पूछ रही है इस पर लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि क्या एलर्जी को ठीक करने के लिए मेडिकल स्टोर से या गूगल करके सोल्यूशन मिल सकता है? श्रद्धा, गूगल पे तो सब कुछ मिलता है, बट हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो ऑलवेज हर जगह के लिए कोई ना कोई, हर चीज के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट फॉर योर एलर्जीज टू योर एलर्जी स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। और अगर आपको जैसे लंग रिलेटेड एलर्जीज है तो आपके फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट को प्लीज कंसल्ट योर रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स। गूगल करके या ऐसे मेडिसिन लेके आप आपकी बॉडी को प्रॉब्लम में डाल सकते हो। डू नॉट डू दैट। राइट, रिस्क क्यों लेना, अपनी लाइफ का रिस्क क्यों लेना, अपनी हेल्थ का रिस्क क्यों लेना? और जितना टाइम आप गूगल पे दवाई ढूंढोगे उतना ही टाइम अगर आप गूगल पे डॉक्टर सर्च करोगे कि आपके आसपास कौन डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो शायद आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अब तो जैसे कि डॉक्टर ने भी बोला, ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी होने लगे हैं। तो आप गूगल अगर कर रहे हैं तो डॉक्टर के बारे में जानिए और उनसे संपर्क कीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर राज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस सेशन। कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसा टेक अवे मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? I would always tell, do not ignore your symptoms, do not self-medicate, do not Google and do your treatments, visit your dermatologist. थोड़ी सी चीज के लिए, थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी के साथ मत खेलिए। It's not good. It is going to give lot of problems in future, and whatever you saved, you might spend more than that. So always, जितने जल्दी आप कोई भी चीज को या कोई भी डिजीज को पकड़ में लाते हो या उसका डायग्नोसिस पे आते हो, it is going to be better. It's going to be easy for you as well as your doctor. एग्जैक्टली तो आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना कम आपको ट्रीटमेंट पे खर्च करना पड़ेगा, उतना कम आपको सफर करना पड़ेगा, उतना कम डॉक्टर को परेशान होना पड़ेगा और आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत जल्दी कम समय में हो सकता है। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्पटम्स, गो एंड कंसल्ट योर dermatologist. Thank you so very much, Dr. Pallavi Rathi, for your valuable time. It has been a very informative session for our viewers, and I'm sure they will use this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting urticaria.
And in case they get to see such symptoms, at least now they know that instead of doing self-medication or instead of Googling or surfing, it's always better to approach a nearby dermatologist. Thank you so very much. Thank you. Thank you very much. We really look forward for many more such sessions in coming times with you for our viewers. Thank you. It was a pleasure. And thank you, viewers, for your participation in today's session. And to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page, All About Skin Allergy. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Goodbye. Have a great day ahead.